Assalamu alaikum. Hello students, welcome back to Nisa Academy. शहनाज शेख here. Thank you for visiting my channel. So last video में हमने already arithmetic progression जो कि class 10 का chapter number 5 वो start किया था, and we have seen the introduction and some examples. So today we will see exercise 5.1 and हम सारे questions देखेंगे in just one video. Okay, we'll cover the whole exercise. एंड आई जस्ट होप दैट आपने वो लास्ट वीडियो देखी है इंट्रोडक्शन, सो आपको ये एक्सरसाइज आसानी से समझ में आ जाएगी. ओके, बट अगर नहीं देखी है सो प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो. आई हैव पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड प्लीज़ टू शेयर दिस वीडियो. और अगर आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर देखना है, किसी पर्टिकुलर क्लास का कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज भी अगर आपको चाहते हैं कोई चैप्टर की, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए. डेफिनेटली आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व एंड हेल्प यू आउट. सो लेट्स बिगिन. So exercise 5.1, question number 1. In which of the following situations does the list of numbers involve make an arithmetic progression and why? Okay, so usually कभी कभी आपको arithmetic progression दिया जाता है, it is an AP or supposed to find out an AP. So when they have told you to find out whether it is an AP, so what you have to check? Obviously the difference, right? है ना, and between any two successive numbers the difference should be constant. तभी तो वो AP होगा. डिफरेंस अगर सेम होगा तो राइट, फिक्स नंबर होगा तो कांस्टेंट होगा तो. सो हमें यहाँ पे कुछ सिचुएशंस दिए जाएंगी एंड वी हैव टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ नंबर्स एंड देन वी हैव टू चेक वेदर इट इज़ एन AP और इट इज़ नॉट एन AP. So let's go for the first one. The taxi fare after each kilometer when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer. So taxi fare for फर्स्ट किलोमीटर, यानी कि आपकी फर्स्ट टर्म हो गई है ना. फर्स्ट टर्म कितना है? ₹15, राइट. नाउ टैक्सी फेयर, ओके, फॉर सेकेंड किलोमीटर कितना होगा? क्योंकि उन्हें कहा देखो फॉर इट इज़ फॉर फर्स्ट किलोमीटर ₹15 एंड फॉर ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर. सो इट विल बी 15 + 8 विच इज़ 23. Yes, right. Now can you tell me the taxi fare for the third kilometer? Yes, taxi fare for third kilometer. Yes, exactly. Rupees this 23. Next again you will add your 8, 31. So now you have got first, second, third. Okay, enough. अगर आप और भी मतलब निकाल सकते हैं, आप चाहे तो मतलब और भी 4-5 टर्म्स, but I guess 3 are enough so you can see the difference. So the first term is, so the list is as follows. Therefore the list is as follows. So 15, okay, 23, 31, it will go on. So this is my first term, that is A1, okay, A2, A3. Now let's check the difference. So A2 minus A1, so 23 minus 15, which is 8, okay. Then A3 minus A2, which is 31 minus 23, again it is 8, yes. So difference between the two consecutive terms, okay, throughout the list is the same, right? Common difference जिसे कहते हैं. So therefore the given list, yes, because the difference is same, the given list forms an AP, okay, as the difference is same, okay, or you have the fixed constant. So the first term is 15 and common difference where you can write here where A is equal to first term is 15 and D is equal to 8. Okay, that is how you denote the common difference. Yes, understood? समझ में आया कि आपको क्या करना है? Yes, okay, let's go for the next problem. Question number 2. The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. Okay. So let the initial, क्योंकि हमें नहीं पता कि initial कितना मतलब what was the amount of air or the volume of air. Okay. The amount of air means they are asking about the volume of air. So the initial volume or the initial amount we don't know. So let the initial, okay, amount of air equal to x units. Okay, suppose x है, हमें नहीं पता कि कितना है. So let's just the initial amount of air in the cylinder, I will say in the cylinder. Okay, कितना है?
x, so that is actually your first term. Okay, so iska 1/4. Okay, what they're asking us, they're telling us the amount of air present in the cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. So initial x, okay, so 1/4 of that is removed, and then you have to find the remaining. Okay, after you remove that 1/4 of the whatever it is present in the cylinder. Okay, so can I say after removing 1/4 amount of air remaining, okay, in the cylinder. So what do you think it will be? Yes, so initially it was x and you remove the 1/4 of it, correct, 1/4 of that x. अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा, ओके, आई विल एक्सप्लेन यू विथ एन एग्जाम्पल. ओके, सिंपल एग्जाम्पल. सपोज आपके पास 80 चॉकलेट्स हैं. ओके, यू लव चॉकलेट्स, इवन आई लव चॉकलेट्स. ओके, सो आपके पास 80 चॉकलेट्स है एंड एज आई टोल्ड यू कि मुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद है. सो आई टोल्ड यू, तो मैं आपको बोल रही हूँ कि चलो बच्चे मुझे 1/4 दे दो. आपकी जो 80 चॉकलेट्स हैं आपके पास, गिव मी 1/4 ऑफ इट. एंड यू आर वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ माइन. ओके, यू रिस्पेक्ट योर टीचर्स सो मच, सो ऑब्वियसली you will say yes ma'am, sure. So what you did is you gave me 1/4. Now what is 1/4 of 80? 1/4 of 80 means what? You are giving me 4 2s are, which is 20 chocolates. करेक्ट है ना. 1/4 आपने मुझे 80 चॉकलेट्स का दिया, मतलब कितने दिए आपने मुझे? 20 चॉकलेट्स दिए. अब मैं आपसे पूछूँ, चलो बताओ अब तुम्हारे पास कितने चॉकलेट्स रह गए, कितने बच गए? सो विल टेल मी 60. बट हाउ यू डिड दैट? 80 - 20 60. करेक्ट. कैसे? क्योंकि आपके पास 80 थे, आपने मुझे 20 दिए, सो बचे कितने? 60 ना. तो आपने कैसे निकाला? ये देखिए हमने कैसे किया, वो 1/4 हमने 80 का, करेक्ट. इनिशियल आपके पास 80 रुपीज़ थे, और सॉरी 80 चॉकलेट्स थे, है ना. उसके आपने 1/4 किए, तो 20 चॉकलेट्स आपने मुझे दे दिए, तो आपके पास 60 बचे. यही चीज़ को, इसी नंबर्स को वी आर टॉकिंग इन जनरल. So see here, initial you had 80 chocolates, means initial the amount of air was x, correct? And 1/4 was removed. So 1/4 of x means in this case it was 1/4 of 80, right? तो वहाँ पे 1/4 of x. अंडरस्टूड. और उसके बाद रिमेनिंग कितने, जो मैंने आपसे पूछा 60. कैसे किया आपने? 80 - 20. अगर मैं इसको प्रॉपर लिखूँ तो कुछ ऐसा किया है आपने, 80 - 1/4 of 80, करेक्ट, which is C. 80 - 20 which is 60. ऐसे ही कुछ किया ना. तो ये देखो, ये वैसे ही है ना, x - 1/4 of x. Initially it was x, correct, and you remove that 1/4 of that. So what will be the remaining? From that x you will minus the 1/4, right? So which is in numbers if we talk about proper, so 60 देखो, और यहाँ पे if we talk about in general, so x - 1/4 of x. Yes, clear, understood? Okay, so now we'll solve this 1/4 of x. So x minus x by 4. So 4x minus x कितना हो गया? 3x by 4. Correct? So ये remaining है. Understood ना? When you remove the 1/4. Now again अब इसका क्या हो गया है? इसका 1/4 निकाला गया है. Okay, again after removing 1/4. So after removing, फिर से अभी क्या हम लोग निकाल रहे हैं? 1/4. अब किसका? अब जो बचा हुआ है इसका. मतलब अब देखिए, जैसे कि आपके पास 60 चॉकलेट्स हैं. येस, यू हैव नाउ 60 चॉकलेट्स. आपने मुझे 20 दे दिए. नाउ अगेन मतलब मुझे तो मतलब हो ही नहीं रहा है कि मुझे और चाहिए. ओके, तो मैं आपसे बोल रही हूँ कि मुझे और 1/4 दीजिए 60 का, एंड गिव मी 1/4. ओके, सो नाउ व्हाट यू विल डू, अगेन यू विल टेक 1/4 ऑफ 60. सो 4 1s, ओके, एंड 4 5s. सो 15 चॉकलेट्स आप देंगे मुझे, करेक्ट. अब आपने क्या किया? येस, 1/4 ऑफ 60 किया. किसका? रिमेनिंग चॉकलेट्स का ना. 1/4 of 60, right? Now if I ask you how many chocolates are remaining, so we'll say yes, 60 minus 15, right? How much it is? Yes, 10 minus 5 5, 45, correct? 45 चॉकलेट्स हैं आपके पास. तो आपने अभी क्या किया? जो रिमेनिंग था उसका 1/4, right? And then I asked you what was the remaining, the last one, okay? So which you told me it is 45 chocolates now with you. So this is how in general the amount of cylinder like remaining is going on. So अभी 3x upon 4 is the remaining. Again इसका 1/4 निकाला गया. जैसे 60 का आपका निकाला था 1/4, again 3x by 4 का 1/4 निकाला गया. So after removing 1/4, so the amount of, मैं लिखती हूँ यहाँ पे, the amount, ओके, आई विल जस्ट रब दिस. होप यू अंडरस्टूड दिस. अगर नहीं तो आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट मार के एक बार ले सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं, बट आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा.
ठीक है। Yes, so after removing 1/4, the amount of air remaining, okay, तो देखिए इसका 1/4, अब ये है remaining, करेक्ट, दिस इज 3x/4, इसमें से आप क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1/4 ऑफ 3x/4, करेक्ट ना, सेम लाइक दिस, सी हियर, अगर मैं नंबर्स में लिखूँ, आपके पास देखिए पहले कितने थे, 60 थे, राइट, ये 60, राइट, माइनस व्हाट यू डिड इज 1/4 ऑफ 60, right, now the same thing which we are doing in general, okay, in terms of x. So now this is what, 3x by 4 minus this is 3x by 16, okay, and the LCM, what is the LCM, yes, 4 and 16, obviously it is 16, so this is 4 3s are 12, this is 12x minus this is 3x which is 9x by 16. सो आपके पास 3 टर्म्स तो आ ही गई हैं, है ना, 1 2, सी द फर्स्ट इज x, सेकेंड 3x/4, सो देयरफॉर द लिस्ट इज एज फॉलोज, ओके, इट इज़ x 3x/4 9x/16, अब आगे चाहे तो निकाल सकते हैं, बट आई गेस दिस मच इज इनफ, ओके, वी जस्ट टेक दिस डाउन, ओके, सो नाउ लेट्स चेक, दिस इज योर फर्स्ट टर्म a1 a2 a3, okay. So a2 minus a1 is 3x by 4 minus x. So cross multiply, how much, what is the difference? You can see here 3x minus 4x by 4 which is minus x by 4, ठीक है. Then a3 minus a2 which is 9x by 16 minus 3x by 4. So this is, yes, the denominator, the LCM is 16, 9x minus 12x by 16 because 4 3s are, okay, and this is minus 3x by 16. So you see the common difference, or the difference is not same, right, it is different between two consecutive numbers. So can you see that it is an AP? No, the given list, therefore the given list does not forms an AP, as the difference between two consecutive numbers is not same, okay, difference between two consecutive numbers is not same, okay, yes, hope you understood, okay. अब चाहो तो फिर से एक बार आप देख सकते हैं कि नंबर्स के ले सके, ओके. सो वेन एवर यू हैव इन ए प्रॉब्लम इन दिस एक्स एंड ऑल, आप चाहो तो नंबर्स लेके एक बार देखो, आपको समझ में आ जाएगा, ओके. सो होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम. सो नेक्स्ट प्रॉब्लम, question number 3, the cost of digging a well after every meter of digging, when it costs rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter, okay. So the cost of digging, I will say, for first meter, yes, how much it is, कितना है, rupees 150. Now for the next meter, they have given us it rises by rupees 50, मतलब 50 से increase होते जा रहा है, right. So tell me the cost of digging, okay, cost of digging for second meter, how much it will be, yes, rupees 150 plus 50 which is 200. Then again I will say cost of digging for third meter, yes, it is 200 plus 50 which is rupees 250. So it will go on. Therefore the list is as follows, okay. So 150, फिर 200, फिर 250 and so on. So let's check, this is A1, this is A2, this is A3. A2 minus A1, 200 minus 150 which is 50, okay. Then A3 minus A2 which is 250 minus 200, again 50, yes. So the difference between the two consecutive terms, between every two consecutive terms is same, right. Therefore the given list of numbers form an AP, since the difference is same, okay, forms an AP.
Okay, you can write with first term is 150 and common difference D equal to 50. Yes? Okay. Hope you understood. Let's go for the next problem. Question number 4. The amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited at the compound interest at 8% per annum. सो हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, राइट? ऐसे हम मतलब सिंपल वे में बोल सकते हैं, जैसे कि आपके पास ₹1000 हो, ओके, एंड यू हैव डिपॉजिट इन द बैंक एंड सपोज द इंटरेस्ट यू गॉट आफ्टर 1 year इज से ₹100, ओके. सो द नेक्स्ट इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन 1100, दैट इज द अमाउंट प्लस व्हाट, your interest. Okay, so this is how the compound interest is calculated. That is how the bank works. Okay, so आपको यहाँ पे दिया है कि the amount of money in the account every year when initial amount, that is the first amount is 10,000 deposited at the compound interest at 8% per annum. So the first amount of first term which we got amount, okay, for the first year will be what? Yes, so initial amount is 10,000, right? So that is your first term. 10,000. And we know the formula for the amount. How you calculate? We have to calculate the amount, okay? 1 plus r upon 100 raised to t, okay? T is time, r is the rate of interest. Yes, we have studied this. So let's say for the first year amount, so p is what? Principal, that is 10,000, okay? 1 plus this is r is 8%, and for the first year you are calculating, okay, amount for the first year. So which is 10,000, 1 plus, okay, raised to it is 1 only. So what I can do is 10,000, just cross multiply 100 plus 8 by 100. So this goes, so what, 108 into 100, so which is, okay, 10,800 rupees, 10,800. So the first year this is 10,800, so that is your second term, okay, I will say A2. Again for the next year, okay, amount, because we need at least 3, in the list of numbers at least 3 numbers you need, right? 3 terms you need. So again the principal amount, that is 10,000, 1 plus 8 by 100 raised to 2, second year, okay. So 10,000, 1 plus, okay, again I will say cross multiply, so 100 plus 8 by 100 square, okay. So this is 10,000, this is 108 by 100 raised to 2, okay, square. So this is 108 by 100 into 108 by 100, right? है ना? So this is gone. So 108 into 108, if you calculate, what you will get is, you will get 1 rupees 1, okay, 664. You can check. So therefore the list is as follows. So the first, okay, amount, that is the principal amount 10,000, okay. Then you see here it is 10,800. Yes, the second term, okay. Then 11664 and so on. A1, A2, A3, okay. Let's see. A2 minus A1, 10,800 minus 10,000. So it is 800, okay, rupees 800. Then A3 minus A2, 11664 minus 10,800. How much it is? Yes, 864, right? Okay. So now you see the difference. Is it same? No. It is 800 here, it is 864 here. Therefore, the given list does not forms an AP, since the difference is not same. Does not forms an AP since the difference is not same. Okay. So देखा आपने, यहाँ पे आपका AP नहीं फॉर्म हो रहा है because the difference between all the consecutive numbers is different. Okay, it's not the same. तो इस तरह से आपको चेक करना है. अगर आपको situations दी गई हैं, आपको ये list बनानी है and then you have to check whether it forms an AP or not. Yes, hope you understood. Okay, let's see the next question number 2. Okay. Question number 2, write first 4 terms of the AP when the first term A and the common difference D are given as follows.
Okay, so this is given to us that the whatever the list is an AP. यहाँ पे फर्स्ट टर्म दी गई है, कॉमन डिफरेंस दिया गया है, एंड दे हैव टोल्ड यू टू राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स. ओके, सो आपको पता है कि मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में दैट इफ द फर्स्ट टर्म इज गिवन एंड द कॉमन डिफरेंस इज गिवन, यू कैन फाइंड एनी टर्म, राइट. मैंने आपको पैटर्न भी दिखाया था एंड आई हैव गिवन द जनरल फॉर्म ऑल्सो, राइट. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. So the first term, that is a1, a is 10. Okay, to find the second term a2, कैसे करेंगे आप लोग? Yes, because the difference is given 10, so what you can do? A plus d, right? Remember? So a is what? 10 plus 10, which is 20, correct? अगर थर्ड टर्म निकालनी है तो कैसे? 2 बार d याद है आपको? Yes, a plus 2d. So a is 10 plus 2 into 10. So 10 plus 30, which is 40, right? And A4 is A plus 3D. So 10 plus 3 into 10, 10 plus 30, okay, which is, oh, sorry. 10 plus this is 20. So sorry. 20, this is 30. 10 plus this is 30, okay. So which is 40, okay. So the terms are 10, 20, 30, 40, okay. सो इस तरह से आपको निकालने हैं. Therefore, the first 4 terms are, which are they? Yes, 10, 20, 30, 40. Okay? Yes? Okay. Next problem, see the second one. A is minus 2, D is 0. This is very easy, right? आप directly भी बता सकते हैं मुझे कि क्या होंगे terms, because the difference is 0. So can I say A1 is A is minus 2. A2 आपको मतलब हमें लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, but just for your knowledge, okay, see a minus 2 plus 0 क्या होगा? minus 2 ही होगा, है ना. तो ये क्योंकि डिफरेंस इज 0 है तो ऑब्वियसली सब जो है नंबर तो सेम ही होगा. A3 भी -2 होगा और A4 भी क्या होगा? -2. देयरफॉर मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ फर्स्ट 4 टर्म्स आर -2, -2, -2, -2. Yes, easy. Okay. Then third one, yes, let's see. Third one is A equal to 4, D equal to -3. A equal to 4, D equal to -3. So A1, that is first term, is 4. A2, how you'll find? A plus D? Yes, so 4 plus -3. So which is plus into minus, minus, so 4 minus 3 is 1. Okay, A3 कैसे निकालेंगे आप लोग? A plus 2D. So A is 4 plus 2 into D is -3. So 4 plus into minus, minus 4 minus 6, which is -2. And A4, A plus 3D. So 4 plus 3 into D is again -3. So 4 minus 9, which is -5. Yes? Therefore, the first 4 terms are 4, 1, -2, -5. Okay. Fourth one देखते हैं. Fourth one, A equal to -1, D half. So A1, A equal to -1, A2, A plus D. A is what? -1 plus D is half. Cross multiply fractions it is. Okay, so -2 plus 1 by 2, which is -1 by 2. Correct? Then A3 is A plus 2D. So A is -1 plus 2 into D is half. Okay, this gets cancelled. -1 plus 1, 0. Yes. And A4, A plus 3D. -1 plus 3 into half. So -1 plus 3 by 2. Cross multiply. It is -2 plus 3 by 2, which is 1 by 2. Therefore, the first 4 terms are, so -1, then minus half. Am I right? Yes. 0 and half. Okay. Question number 5.
Question number 5, A equal to minus 1.25 and D is minus 0.25. So A1, A equal to minus 1.25, A2, A plus D करना है, A2 is minus 1.25 plus of minus 0.25. Okay, so minus 1.25 minus 0.25. So कितना होगा? Yes, minus minus plus, so minus 1.50 it is. Yes, 25 ना. Then A3, A plus 2D, A is minus 1.25 plus 2 into minus 0.25. Okay, so minus 1.25 minus 2 into 0.25. Sorry, 2 into 0.25. Yes, minus 0.5. Okay, so minus minus again plus, which is minus 1.75. Then A4 is A plus 3D. Okay, then minus 1.25 plus 3 into minus 0.25. So which is minus 1.25. 3 into 25 is 75. So this is 0.75. So minus 1.25 minus 0.75 is minus 2. Therefore, the 4 terms are, yes, it is minus 1.25 minus, yes, 1.50, correct? Yes. Then minus 1.75 and minus 2. Yes? समझ आया आपको क्या करना है? ओके, क्वेश्चन 2 में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया. अगर आपको A5 निकालना है तो A plus 4D होगा. कोई भी टर्म आप निकाल सकते हो अगर आपके पास फर्स्ट टर्म है एंड यू हैव द कॉमन डिफरेंस. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 3. For the following APs, write the first term and the common difference. Okay. So, देखिए काम तो आसान हो गया क्योंकि ऑलरेडी AP है तो जस्ट वी हैव टू राइट अ फर्स्ट टर्म जो कि दिख ही रहा है सभी इसमें, आप डायरेक्टली देख के बता सकते हैं. एंड कॉमन डिफरेंस क्योंकि बस दो ही मतलब नंबर्स के बीच का अगर देखना है वह एक ही मतलब पैर आप लोग कोई देख लीजिए क्योंकि डिफरेंस तो सेम होगा, है ना, AP है ना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन 3 1 minus 1 minus 3. So first term, yes, A 3, right, and D निकालना है डिफरेंस. So this is A1 A2 minus A1 ले लेते हैं. 1 minus 3 which is minus 2 हो गया. बाकी सबका सेम ही होगा, AP है ना. Then second one, what is it? Yes, minus 5 minus 1 3 7. A is what? Minus 5, yes, and D A2 minus A1 minus 1 minus of minus 5. Okay, so minus 1 plus 5 which is 4, right? Yes. So ज़रा ये साइंस पर आप ज़रा ध्यान देना, ठीक है. कभी कभी साइंस में गड़बड़ हो जाती है, मिस्टेक्स करते हैं बच्चे. सो ओनली डैट, अदरवाइज प्रॉब्लम्स आर वेरी इजी. देन 1/3, 5/3, then 9/3, 13/3. Okay. So A is here 1/3 and D is what? 5/3 minus 1/3. Same denominator, no? 4/3. Okay. Then question number 4. The problem is yes. 0.6, 1.7, then what? 2.8, 3.9. 2.8, 3.9. So A is 0.6 and D is what? 1.7 minus 0.6. Okay. So which is 1.1. ओके डन. देखिए हो गया है ना. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. Question number 4. Which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. हाँ, यहाँ पे थोड़ा मतलब प्रॉब्लम तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन थोड़ा आपको चेक करना पड़ेगा कि AP है. वरना यूजुअली AP होता तो बहुत आसान होता है ना, डायरेक्टली हम लोग फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं, कॉमन डिफरेंस वी फाइंड. बट यर फर्स्ट वी हैव टू चेक if it is an AP, if the list forms an AP, then we have to find a common difference and 3 more terms. Okay, तो चलो start करते हैं one by one. So first one, तो मैंने आपको बताया कि AP कैसे check करना है. Yes, you have to see the difference. If it is same, then yes, gives the thumbs up. Okay, अगर नहीं तो फिर चलो next problem की ओर. So first one देखते हैं. So 2 4 8 16. Okay,
सो A1 A2 A3 हमने इतनी बार लिखा है, ठीक है, तो मैं बस डायरेक्टली अब जल्दी जल्दी से मुझे बस डिफरेंस देखना है, ठीक है। सो A2 माइनस A1 में देख लेती हूँ, 4 माइनस 2 2, ओके। देन A3 माइनस A2, 8 माइनस 4 4, अरे आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है ना, देखो यहीं पे समझ में आ गया, डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर द लिस्ट डज नॉट फॉर्म एन AP, देयरफॉर द लिस्ट does not forms an AP since the difference is not same, okay, ऐसा आप लिख सकते हैं। फिर because since लिख लो, since the difference, okay, is not same। चलो भाई सेकेंड की ओर चलते हैं, ओके। सो 2 5 बाई 2 3 7 बाई 2, 2 5 बाई 2 3 7 बाई 2, ओके। सो A2 डायरेक्टली आई विल स्टार्ट, A2 माइनस A1, 5 बाई 2 माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5 माइनस 4, 2 2 ज़ा 4 बाई 2, 1 बाई 2। देन A3 माइनस A2 कीजिए, 3 माइनस 5 बाई 2, ओके। सो अगेन क्रॉस, 6 minus 5 by 2, 1 by 2, right? Then again I will do A4 minus A3, so 7 by 2 minus 3, again 7 minus 3 2s are 6 by 2. Yes, so the difference is same. तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि it is an AP? Yes, definitely it is an AP because the difference is same, right? Therefore the list forms an AP। वो आप लिख लो, ठीक है मैम, क्योंकि अब बहुत सारे हमको देखने हैं ना, ये देखिए कितने सारे और भी हैं आगे, तो मैं अभी मतलब बार बार मैं लिख रही हूँ, आप प्लीज़ वो लिख लीजिए, ठीक है मेरे अच्छे बच्चे। तो आप वो लिख लीजिए, एग्जाम में लिखना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में से इतने सारे तो नहीं आएंगे, आपको एक ही प्रॉब्लम आएगा, तो आप ध्यान से चेक करके फिर लिख लीजिए द लिस्ट फॉर्म्स एन AP या नॉट एन AP, ठीक है। सो मैं सिर्फ शॉर्ट में लिख रही हूँ, द लिस्ट डज नॉट फॉर्म, लिस्ट फॉर्म्स एन AP, सॉरी, फॉर्म्स एन AP, ठीक है जी। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स, हाँ अभी नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकालना है। D तो पता चल गया ना, D इज़ वॉट 1 बाई 2। नेक्स्ट 3 टर्म्स अभी देखिए कहाँ तक थे, 1 2 3 4, नेक्स्ट 3 टर्म्स मीन्स यस 5 6 7 निकालना है आपको, है ना। सो नेक्स्ट 3 टर्म में सबसे पहले A5 कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया है कि कोई भी टर्म आप निकाल सकते हैं अगर आपके पास फर्स्ट टर्म है एंड कॉमन डिफरेंस, ओके। आई हैव शोन यू द पैटर्न, सो डू चेक माई डिडक्शन वीडियो। सो A इज़ वॉट, यस देखिए यहाँ पे A, देखिए A2 है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ A2, 2 प्लस 4 इंटू D इज़ वॉट 1 बाई 2, ओके। ये देखिए कैंसिल हो रहा है तो कर दीजिए, 2 प्लस 2 इज़ 4, A5 मिल गया। A6 क्या होगा, A प्लस 5D, यस 2 प्लस 5 इंटू डिफरेंस इज 1 बाई 2, सो 2 प्लस 5 बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 बाई 2 विच इज़ 9 बाई 2, ठीक है। और कौन बच गया, A7 भी 3 टर्म्स है ना, नेक्स्ट 3 टर्म्स, सो A प्लस 6D, करेक्ट। सो 2 प्लस 3 इंटू 1 by 2, okay, so which is 2 plus 3 by 2, so which is 7 by, okay, ये क्यों करना, ओह सॉरी 6 कहाँ से, 3 कहाँ से, 6 हो ना, ओह यस, ओके, सो 2 plus 3 5, ठीक है, सिली मिस्टेक ठीक है। तो देखिए A7 भी आ गया, तो आपके नेक्स्ट 3 टर्म्स भी आ गए हैं ना, 4 9 by 2 एंड 5, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, सो देख लेते हैं क्या है, यस क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। चलो स्टार्ट करते हैं, A2 माइनस A1 -3.2 माइनस ऑफ -1.2, so -3.2 plus 1.2 which is yes -2, is it, yes। then A3 minus A2 minus 5.2 minus of -3.2, so -5.2 plus 3.2 which is -2, right। then A4 minus A3 again -7.2 minus of -5.2 minus 7.2 plus 5.2 which is again -2, right। so आप देख सकते हैं डिफरेंस क्या है, सेम है, right। so it is an AP, okay, therefore the list forms an AP, okay, since it has the same difference, okay, common difference।
लिस्ट फॉर्म्स इन AP, तो D तो मिल गया, D -2 है और A क्या है आपका, A -1.2 है, राइट। सो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं। ये देखिए 4 टर्म्स है ना आपके पास, 1 2 3, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, right? So A5, yes, we know how to find A plus 4D. A is -1.2 plus 4 into D is what? Difference is -2, correct? So -1.2 minus 8. So which is -9.2, correct? Then A6, A plus 5D. So A is -1.2 plus 5 into -2. So -1.2 minus 10, which is -11.2. And A7, A plus 6D. So A plus 6 into D is -2. Oh, sorry, A तो मैं डालना ही भूल गई. A is -2, -1.2, okay, -1.2, -12. So this is -13.2, करेक्ट. सो देखिए आपके नेक्स्ट 3 टर्म्स भी आ गए, है ना. चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम. यस, फोर्थ वन -10 -6 -2 2. तो चलिए देखते हैं. A2 माइनस A1 -6 माइनस ऑफ -10. सो -6 + 10 कितना हुआ, 4, करेक्ट. देन A3 माइनस A2 विच इज़ -2 minus of -6, so -2 plus 6, which is again 4. And A4 minus A3 is 2 minus of -2, which is again 4. Yes, तो डिफरेंस सेम है. AP मिल रहा है, तो अब मैं नहीं लिख रही हूँ बार बार, डायरेक्टली मैं लिख रही हूँ. D4 है, okay, list forms in AP, ठीक है, and A is -10, and we have to find the next 3 terms. So A5 is what? A plus 4D. A is -10 plus 4 into D is 4. So -10 plus 16 is what? 6? Yes. Then A6, A plus 5D. A is -10 plus 5 into D is 4. -10 plus 5 4s are 20. So which is 10. And A7, A plus 6D, which is -10 plus 6 into 4 -10 plus 24, which is 40. Okay. Yes, समझ आ गया ना? Understood? Okay, good. Let's go. Fifth problem. Question number 5. 3 plus root 2, 3 plus 2 root 2, 3 plus 3 root 2. Okay, चलिए स्टार्ट करते हैं. So A2 minus A1 डायरेक्टली मैं लिख रही हूँ. 3 plus root 2 minus 3, है ना. ये तो गया क्या, root 2. yes, यही बच गया. Then A3 minus A2, 3 plus 2 root 2 minus, this is, yeah, we'll put it in bracket. Okay, whenever you have minus sign, the next term you should always put in bracket. Okay, तो अभी आप इसको बाहर निकालिए. ये देखिए -3 माइनस √2, ये तो गया. 2 √2 माइनस √2, यस, √2 है ना. अगर आपके पास सेम रेडिक मतलब √2 अगर सेम हो तो आप सब्ट्रैक्शन कर सकते, जैसे नॉर्मल नंबर्स 2 - 1 है ना, वैसे ही करना है. देन A4 माइनस A3, A4 इज 3 plus 3 √2 minus 3 plus 2 √2, करेक्ट. सो फिर से मैं 3 plus 3 √2 minus 3 minus 2 √2. सो ये तो कैंसिल. 3 √2 minus 2 √2, yes, 3 minus 2, which is 1, again √2. So it is the same, right? You can see difference is same. Therefore the list forms an AP with common difference √2, right? And A क्या है, 3 है, देखिए, right? चलिए तो A5 लिख लेते हैं, है जी. तो A5 क्या होगा, A plus 4D, this is 3 plus this is √2. So can I write it as 3 plus 4 √2? है ना, डायरेक्टली था. A6, A plus 5D, which is 3 plus 5 into D is √2. So 3 plus 5 √2. And A7 तो आप बोल ही सकते हैं, A plus 6D, which is A plus D is 6, directly I will write. Okay, A
sorry, A is 3 plus 6 root 2. Okay, so A5, A6, A7 ये भी आ गए. चलो हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6, 0.2, 0.22, 0.222. चलिए देखते हैं. A2 माइनस A1 सबसे पहले. 0.22 माइनस 0.2 कितना होगा ये? यस 0.02 राइट. 0.02. फिर आप देखिए A3 माइनस A2. A3 इज 0.222 माइनस 0.22. तो ये होगा 0.002 राइट, है ना. दिख रहा है आपको 0.002. अब आप यहीं पे देख सकते हैं द लिस्ट. यस द डिफरेंस इज नॉट सेम, द लिस्ट डज नॉट फॉर्म्स इन AP. ओके, तो आप लिख लीजिए वहाँ पे, मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ. ठीक है, वो लिखना, वो सेंटेंस आपके लिए छोड़ देती हूँ. सिंस डिफरेंस इज नॉट सेम द गिवन लिस्ट डज नॉट फॉर्म इन AP. ओके, देयरफॉर चलिए मैं लिख ही लेती हूँ. अब मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं. द गिवन लिस्ट डज नॉट फॉर्म्स एन AP. ठीक है, सिंस द डिफरेंस इज नॉट सेम. ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम. यस, क्वेश्चन नंबर 7. चलिए देखते हैं. A2 माइनस A1, सो -4 माइनस 0, ऑब्वियसली -4 ही होगा. एंड A3 माइनस A2 -8 माइनस ऑफ -4, सो -8 प्लस 4 विच इज़ -4. एंड A3 माइनस A2 कितना होगा? -12 माइनस ऑफ -8 -12 plus 8 again -4. So difference is same. Yes, it is an AP with what? D equal to -4 और A कितना है देखिए 0. Yes, चलिए तो A5 निकाल लेते हैं. ठीक है, सो A plus 4D. A तो 0 है. 4 इंटू D कितना है? -4. सो दिस इज yes -16. ओके, देन A6. A प्लस 5D, ये तो 0 है, तो 5 इंटू मैं -4 लिख लेती हूँ, -20. ओके, एंड A7. A प्लस 6D. A तो 0 है, 6 इंटू -4 विच इज़ -24. तो देखिए हो गया, है ना. तो अभी देखिए कितने फास्ट हो रहे हैं ना हमारे प्रॉब्लम्स, क्योंकि हमें पता है A1 A2. तो अगर आपको पता है तो आप बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो, वो भी जल्दी जल्दी, है ना. तो चलिए अब जल्दी से नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं. यस, 8th वन. ये देखिए इतना इजी, मतलब आप देख के बता सकते हैं ना इसमें कॉमन डिफरेंस मतलब क्या हो सकता है ना. मुझे करने की ज़रूरत है कि आप खुद बताइए, ज़रूरत है. चलिए, आप चाहते तो मैं एक टर्म तो निकाल ही सकती हूँ. देखिए आप A2 माइनस A1 -1/2 माइनस ऑफ -1/2. ऑब्वियसली इट विल बी वॉट? यस 0. अगर मैं आगे भी तो 0 ही आए, क्योंकि आप दिख ही रहा है आप लोगों की कोई मतलब डिफरेंस क्या है, 0 है ना. तो ये तो AP है ही. तो हम आगे के टर्म्स भी आप ओरली ही बता सकते हैं ना क्या होंगे. चलिए अगर नहीं बता पा रहे हैं तो A5 देख लेते हैं. A प्लस 4D. A तो आपकी -1/2 है. 4 आपकी D क्या है 0, तो -1/2 है ना. A6 भी क्या होगी? -1/2. और A7 भी क्या होगी? -1/2. मतलब यहाँ पे हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है ना. इतना ईजी है ये. ठीक है जी, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम. यस, 9th वन. 1 3 देखिए 9 27. चलिए स्टार्ट कर लेते हैं. सो 9th वन 1 3 9 27. सो वैसे ही करना. अब हम जल्दी जल्दी ठीक है कर लेते. A2 माइनस A1 3 माइनस 1 2. A3 माइनस A2 9 माइनस 3 6. चलो ख़त्म हो गई बात, यहीं पे स्टॉप हो गया, क्योंकि है ही नहीं AP. लिस्ट डज नॉट फॉर्म्स इन AP, डिफरेंस इज नॉट सेम. चलो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, वो आप लोग लिख लीजिए आप याद से एग्ज़ाम में कि लिस्ट क्यों नहीं फॉर्म होती है AP. ठीक है, 10th वन देखिए. यस, A 2A 3A 4A. ओके, तो चलिए A2 माइनस A1 विच इज़ 2A माइनस A कितना हो गया? A. देन A3 माइनस A2 विच इज़ 3A माइनस 2A. A अगेन. एंड A4 माइनस A3 कितना हो गया? 4A माइनस 3A अगेन A, है ना. तो देयरफॉर D इज इक्वल टू सेम डिफरेंस. यस इट इज़ एन AP, वो आप लिख लेना. D तो A है मेरा, और फर्स्ट टर्म भी मेरा A है, तो मैं A1 लिख लेती हूँ, है ना, डिफरेंस समझ में आएगा. सो A5 निकालना है. सो A प्लस 4D. ठीक है, A1 जबकि फर्स्ट टर्म हमारा A ही है. A प्लस D क्या है? 4A है ना, DA है ना.
सो 4a हो गया. सो a प्लस 4a 5a, करेक्ट. a6 अगेन a प्लस 5d. फर्स्ट टर्म तो a है, डिफरेंस a है, सो दिस इज 6a. और a7 क्या होगा, a प्लस 6d विच इज a इज a एंड 6 इंटू a विच इज यस 7a, है ना. यस, इजी. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम. 11th वन, ए स्क्वायर ए क्यूब ए रेज टू 4. सो चलिए देखिए, ये a1 है, a2 a3, ठीक है, a4. सो a2 माइनस a1, सो ए स्क्वायर माइनस ए. तो देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है, मैं इसको और कैसे सिंप्लीफाई कर सकती हूँ. सो इफ़ यू सी ए इज़ कॉमन, राइट. सो यहाँ से ए स्क्वायर से ए मैंने बाहर निकाला, तो एक मतलब रह गया, माइनस फ्रॉम यर आई टुक ए कॉमन, सो व्हाट रिमेन्स 1, करेक्ट. आप चाहो तो फिर से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, वही टर्म आएगी आपकी, है ना. सो नेक्स्ट देखते हैं फिर, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर. तो यहाँ से सबसे ज़्यादा आप कॉमन देख सकते हैं, ए स्क्वायर है, राइट. सो ए स्क्वायर, सो यहाँ पे अगेन ए रिमेनिंग एंड फ्रॉम यर इट्स 1. सो आप देख सकते हैं पहली दो टर्म्स यही कि यू नो द डिफरेंस इज नॉट सेम, राइट. देयरफॉर द लिस्ट डज नॉट फॉर्म एन एपी. ओके, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम. यस, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, √2 √18 √8 √18 √32. तो चलिए वैसा ही a2 माइनस a1 √8 माइनस √2, ठीक है. तो अभी देखिए हम ऐसे डायरेक्टली तो सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते ना कि √8 माइनस √2 √6 हो गया, नहीं, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में ध्यान रखना पड़ता है कि वो रेडिकल्स मतलब √2 अगर सेम हो, मतलब या फिर √2 √3 ऐसा, ठीक है. तो हम ऐसे इसको मतलब सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो कैसे सिंप्लीफाई करें, तो मैंने बहुत बार अपनी वीडियोज़ में आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स दैट व्हेनेवर यू हैव नंबर्स वेर यू कैन स्प्लिट इट इन सच अ वे कि एक परफेक्ट नंबर है और एक इम्परफेक्ट नंबर है, तो प्लीज़ उसे कीजिए, उसे सिंप्लीफाई कीजिए, राइट. So how can I write √8? Can I write it as 4 2s are? Yeah, because 4 is a perfect square and 2 is not. So 4 ka square root to 2, this is 2 √2 minus √2. Now see, you can do subtraction, okay, because it has the same radicals, you can see radicals. So 2 √2 minus √2, √2, right? 2 minus 1, okay. So चलिए ये हो गया. फिर a3 minus a2, a3 minus a2, √18 माइनस √8. अगेन द सेम थिंग, आप √18 को स्प्लिट कीजिए, यू नो, इन सच अ वे दैट वन इज़ अ परफेक्ट, अनदर वन इज़ अ नॉट. सो कैन आई राइट 9 2s एंड 8 तो अब भी देखा है ना, 4 2s, करेक्ट. सो दिस इज 3 √2, करेक्ट, 9 का स्क्वायर रूट एंड दिस इज 2 √2, ओके. सो 3 minus 2 अगेन 1 √2. चलिए तो समझ में आ रहा है ना, इट्स एन ए पी, ओके. विल सी वन मोर, a4 माइनस a3 विच इज़ √32 माइनस √18. ये देखिए, चेक कीजिए, मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, मैं याद रखती हूँ, ठीक है. ओके, सो अगेन दिस आई कैन राइट 16 2s एंड यर दिस इज 9 2s. सो दिस आई कैन राइट 4 √2 माइनस दिस आई कैन राइट 3 √2. So 4 minus 3 is 1, this is √2. So yes, it forms an AP with common difference √2, right? So चलिए नेक्स्ट हम निकालते हैं, a प्लस 4d. a क्या है, a क्या है, a क्या है, √2 ना. yes, √2, a √2. so √2 प्लस 4 इंटू √2, तो कितना हो गया, √2 प्लस 4 √2. तो क्या मैं लिख सकती हूँ 5 √2, ठीक है. बट लेकिन ध्यान से देखो, आपकी लिस्ट कैसी है, नंबर्स में है, ऐसे तो है नहीं ना कि √2 2 √2 अगर होती तो, मतलब इसको अभी फिर से उल्टा, ठीक है, बैक टू जाना पड़ेगा, मतलब उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, एक नंबर में, रूट में ऐसा. तो आप देख सकते हैं 5 √2 यानी कि किसी से तो निकल के आया, मतलब एक कोई तो परफेक्ट है, कोई तो इम्परफेक्ट है ना. तो बहुत सिंपल, इसको बस स्क्वायर कीजिए, जस्ट स्क्वायर इट एंड यू विल गेट द आंसर. सो व्हेन आई स्क्वायर दिस इज व्हाट 25, ओके. सो ये 25 इंटू, है ना, 25 इंटू 2 है जी. सो 25 इंटू 2 कितना हो गया 50. सो √50 किसको स्क्वायर करना है, 5 को स्क्वायर करना है, ठीक है. 5 को स्क्वायर करके उसको बस रूट के अंदर डाल देना है. सो 25 2s √50, है ना. सो वही फिर आप चेंज करोगे अगर आपको, तो आपको क्या मिल जाएगा, 5 √2 ही मिलेगा ना. देखिए बस वही करना है हमको, है कि नहीं, है ना, कितना सिंपल. तो बस आपको 5 को सिर्फ स्क्वायर करना है और सिर्फ रूट के इसको अंदर डाल दीजिए, मतलब ऐसे समझिए कि आप रिवर्स जा रहे हैं, ओके, बैक जा रहे हैं. तो आप 50 को अगर आप स्प्लिट करोगे तो आपको 5 √2 ही मिलेगा. अंडरस्टूड. चलिए a प्लस 6 देख लेते हैं.
√2 प्लस 5 √2 होगा, है ना। सो विच इज़ व्हाट 6 √2। तो यहाँ भी क्या करना है, 6 को स्क्वायर कीजिए और रूट के अंदर डाल दीजिए, 36 इंटू 2 विच इज़ √72, है ना। देखिए आ गया, है कि नहीं। सिर्फ स्क्वायर करना है और रूट के अंदर डाल देना है। अब आप 72 को स्प्लिट करेंगे वही चीज़ मिलेगी आपको। और ये क्या होगा, a प्लस 6d, a इज़ √2 प्लस 6 √2, सो विच इज़ 7 √2। ठीक है, सो क्या करना है, यस 49, 7 का स्क्वायर कीजिए, इसको अंदर डाल लीजिए रूट के 2 के साथ में, विच इज़ √90। यस, सिंपल वे। चलिए आ गए ना आंसर्स। अगर सिर्फ रूट में होते तो आप यहाँ तक स्टॉप कर लेते, बट सिंस द लिस्ट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ रूट ऑफ नंबर्स, सो बेटर वी डू दिस। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। यस, क्वेश्चन नंबर 13, a2 माइनस a1, अगेन देखते हैं √6 माइनस √3। सो ये भी वैसा ही करना है। तो ये इसको यहाँ पे देखिए, अभी तो स्प्लिट नहीं होगा ना परफेक्ट, तो हम जैसे हैं वैसे इसको स्प्लिट कर लेते हैं ताकि कुछ तो कॉमन मिले, है ना। तो देखिए ये √2 इंटू ये क्या हो जाएगा √3, और ये √3, ये माइनस है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे √3 कॉमन है, तो क्या मैं इसे लिख सकती हूँ √2 माइनस 1, क्योंकि यहाँ से √2, ठीक है, √3 मैंने कॉमन लिया तो √3 तो बाहर आ गया, √2 रिमेन्स, एंड फ्रॉम यर -1। देन नेक्स्ट a3 माइनस a2 इज़ व्हाट, √9 माइनस √16, and √9 is, we know it's 3, okay, sorry √6 it is, and this is √2 into, अब भी जस्ट हमने देखा है √3। तो अब 3 को कैसे लिख सकते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, वी नो √3 का जो स्क्वायर है वो 3 होता है, मीन्स रूट ऑफ एनी नंबर स्क्वायर इज द सेम नंबर, राइट। √a² इज द a। सो क्या हम 3 को ऐसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, राइट, एंड दिस इज √2 इंटू √3। अब देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, √3, यहाँ से एक √3 है तो यहाँ एक √3 बचा, और यहाँ से √2। सो आप देख ही सकते हैं डिफरेंस कॉमन नहीं है, सो इट इज़ नॉट एन AP। ओके, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है रूट्स को देख के कि अभी बहुत कुछ करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, स्टॉप हो गया, चलो अच्छी बात हो गई है ना। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। येस, फॉर 14th वन, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, तो कुछ भी नहीं है, तो हम लोग उसको थोड़ा सा और अच्छे से सिंप्लीफाई करके स्क्वायर कर ही दीजिए ना, 1 9 25 49, है ना। तो देखिए a2 माइनस a1 क्या है, 9 माइनस 1 8, a3 माइनस a2 25 माइनस 9 16, चलो ख़त्म, स्टॉप। देखने की ज़रूरत ही नहीं है, लिस्ट डज नॉट फॉर्म्स इन AP बिकॉज द डिफरेंस इज नॉट सेम। चलो चलो स्टॉप हो गया। ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम। यस नेक्स्ट 15th 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73। तो फिर से इसको 1 स्क्वायर 25 49 73, ओके। तो चलिए देखते हैं a2 माइनस a1 विच इज़ 25 माइनस 1 विच इज़ 24, then a3 minus a2 is 49 minus 25 which is again 24, and a4 minus a3 कितना है 73 minus 49 again क्या है, yes 24 ही है। So yes, it is an AP with difference D024 A1, करेक्ट। सो चलिए नेक्स्ट टर्म्स निकालते हैं। A5 कैसे निकालेंगे, a प्लस 4d, a तो 1 है, 4 इंटू 24, so 24 into 4 is 96, sorry, plus 1 97, correct. Then a6 is a plus 5d, so 1 plus 5 into 24, so which is 120 plus 1 121, and a7 is a plus 60, which is 1 plus 6 into 24, so which is 6 4s are 24, 44 plus 1 which is 145, करेक्ट। यस, तो देखिए फाइनली हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई विथ, एंड वी हैव सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। ओके, पूरी एक्सरसाइज हमने सॉल्व की है इस वीडियो में। सो आई होप आपको समझ में आ गया। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया प्लीज़ डू टेल मी, ओके। आप अगर चाहते कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपको नहीं समझ में आ रहा है, यू वांट अगेन एक्सप्लेनेशन, नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से एक्सप्लेनेशन दे दूँगी, ओके।
बट आई रियली होप कि समझ में आ गए होंगे मोस्ट ऑफ के सारे प्रॉब्लम्स। एंड नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी, और बहुत और भी सारे पॉइंट्स हैं इसमें, ठीक है। एंड विल अगेन सॉल्व लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो आई होप आपको समझ में आया, एंड प्लीज़ टू शेयर दिस वीडियो, ओके, एंड कनेक्ट विथ मी थ्रू इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ओके। और अगर आपको, जैसे मैंने कहा, कोई भी चैप्टर आपको चाहिए, particular any chapter you want, please do comment and tell me, so that I will try to upload it as soon as possible. Thank you, see you, bye bye.